وہ ہلی تھی، خود کو مضبوط حصار میں محسوس کرتی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی۔ خود کی کمر کے گرد ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اعصاب بحال ہوئے، سمجھنے کی کوشش کی کہ کہاں ہے۔ سر تھوڑا سا اس کے سینے سے اوپر اٹھایا تو ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے۔ تم لفظوں میں بھی لڑکھڑاہٹ آئی تھی اور جسم بھی کانپا تھا۔ اس کے آغوش میں اسے یاد تھا کہ وہ آخری بار ڈونا کو تھپڑ مارتی بے ہوش ہوئی تھی، اور اب وہ پوری کی پوری اس کے اوپر پڑی ہے۔ حیا کی سرخیاں چہرے پر آئی تھی اور دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اس نے منٹوں میں اپنی حیا کو پیچھے دھکیلتے چہرے پر غصہ طاری کیا تھا۔ ہاں میں اس کی اٹھنے کی مزاحمت کو کمزور بناتی کمر پر گرفت اور مضبوط کی تھی۔ چھوڑو ہائی اور جاؤ یہاں سے، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی گرفت چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ میاں بیوی کے کمرے میں کیا کرتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں تمہیں، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائی پلیز، میری کمر ٹوٹ جائے گی، چھوڑیں، اس نے التجا کی تھی۔ فکر مت کرو، میری ہی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی بھی منظور ہے۔ اب اس نے معنی ہیزے سے کمر سہلاتی اور ہلکی سی چٹکی بھرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ شرم سے پانی پانی ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ ارے فا، کیا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے بابا، چھوڑ رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ زور سے لگی چٹکی۔ وہ اس کی سسکی سے پریشان ہوا تھا اور اسے بیڈ پر ڈالا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے اپنے گال رب کرتے صاف کیے تھے۔ مجھے وہاں آلریڈی لگی تھی اور آپ نے وہیں پر مجھے پین ہو رہا ہے اب، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ درد کہاں برداشت ہوتا تھا اس سے؟ دکھاؤ مجھے کہاں لگی تھی، کیا ہوا تھا؟ حائسم نے اس کی شرٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آئی، وہ رہنے دے آپ، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر اس نے وہ نشان دیکھ لیا جو بربل نے ہاک کرتے وقت اسے چٹکی بھر کر دیے تھے تو وہ پوچھے گا بھی تو کیسے وہ جواب دے پائے گی اس کو؟ ہاتھ ہٹاؤ فاہا، دکھاؤ مجھے۔ وہ بس ضد ہوا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بہرحال وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اس کا روم موڑ کر اس کی کمر سے شرٹ ہٹا چکا تھا جہاں اسے دو بڑے بڑے نیل واضح نظر آئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ یہ کس نے کیا فہا؟ اس نے آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کس نے نہیں، وہ میں مجھ سے ہی۔ جھوٹ نہیں فہا، بتاؤ کس نے کیا یہ؟ مومن نے۔ وہ زبردستی میرے گلے لگا تھا اور پھر مجھے چٹکیاں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس کے گلے لگنے کی؟ اس کو جھٹکے سے چھوڑتے اٹھ بیٹھا تھا وہ اور پھنکارا تھا اس پر۔ میں بتا رہی ہوں نا ہائی، وہ اس نے زبردستی۔ چپ، ایک دم چپ۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے اسے خاموش کروا دیا تھا اس نے۔ ایک طوفان آسمایا تھا اس کے اندر، یہ سوچ ہی کافی تڑپا دینے والی تھی کہ وہ کسی اور کی باہوں میں۔ ہائی پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا، ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا اس نے اسے ایک دم بیڈ سے اترتے دیکھ کر۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا کر پاکٹ میں رکھتے جوتے پہنے آپ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جانتا تھا یہاں رکا تو غصے میں کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ آپ مجھے پھر سے اگنور کر رہے ہیں ہائی، میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتے آپ، اس نے اس کے سامنے آتے کہا تھا۔ ہٹو سامنے سے فہا، میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا، ابھی میرا جانا ضروری ہے یہاں سے۔ نہیں جانے دوں گی آپ کو، نظر نہیں آ رہا میں تکلیف میں ہوں؟ تو کیا کروں؟ وہ درد چنوں تمہارے جو تمہیں اس مومن نے دیے ہیں؟ میری بیوی کے جسم پر نشان کسی اور کے دیے برداشت کروں؟ بےغیرت نہیں ہوں میں۔ وہ غرایا تھا اس پر۔ بدلے میں وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگی اس کے گریبان کو ہاتھوں میں پکڑے رونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو سست کچھوے، آئی ریئلی ہیٹ یو بیکاز آئی لو یو، یو آر اے ڈرٹی ٹرٹل۔ اس نے مجھے ہرٹ کیا، وہ بھی تب جب آپ میرے پاس نہیں تھے۔ میں مضبوط ہوں، بہت مضبوط، مگر اس کے باوجود میں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کمزور پڑ گئی۔ مجھے ہرٹ ہوا تھا بہت، مجھے آج بھی ہرٹ ہوا جب آپ نے کیا۔ آپ غصہ کرنے کے بجائے میرے درد چن بھی تو سکتے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتی سے اظہار محبت کے ساتھ گلے شکوے کر رہی تھی اور اس کے اندر سکون اتر رہا تھا۔ کیوں اگنور کرتے ہیں آپ مجھے؟ میں آگ لگا دوں گی سب کو اور آپ کو بھی۔ یو اگنور، یور اگنورینس ہرٹنگ می ڈیپلی، وہ اس سے دور ہوتی چلائی تھی۔ جبھی اس نے اس کے بازو کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ چن لو پھر سارے درد اور کچھ نئی میٹھے درد سونپ دو اپنی قربت کے، وہ اس کی گیلی نم آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے نظریں جھکا گئی تھی۔ نہیں جائیں آپ یہاں سے، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے یہ مشکل کہہ پائی تھی وہ۔ کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا کہ تم میری اگنورنس سے ہرٹ ہوتی ہو، اس کے نم گالوں سے اپنے لبوں سے آنسو چنتے کہا تھا اس نے، اور وہ اس نرم گرم لمس پر بے حال ہوتی سانس رک گئی تھی اس کی۔ ہائی آپ پلیز، اس کی گرفت چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ لب پر کچھ لگایا نہیں تم نے؟ سوری، لپ پر کچھ لگایا نہیں تم نے؟ اس کے لب کے کونے پر ابھی ازدحام ہی تھا۔ چھوڑیں ہائی، وہ اس کے ساتھ اس کے جذبات سے ڈر ہی رہی تھی۔ دل میں ایک طوفان تھا، وہ کانوں میں دھک دھک سے بج رہا تھا۔
छोड़ दिया। उसने उसके चेहरे के जर्द रंग लरसते जिस्म और कपकपाते होंठों को देखते उसकी हालत पर रहम करते अपनी गिरफ्त ढीली कर दी थी और वो एकदम से उससे अलग होते। एक सेकंड की भी देरी की अपने बिस्तर में दबकी थी और कंफर्टर मुंह तक कोड़ा था। जाएं आप यहाँ से, हाई कंफर्टर में से ही आवाज़ लगाई थी। ओके, ख्याल रखना अपना, उसने भी कहा था और फिर उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। कुछ देर बाद उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते शुक्र अदा करते उसने मुंह से कंफर्टर उठाया और रूह बदला था कि डर के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। वो बिल्कुल उसके पल्लू में बैठा था। निकाह मुबारक, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उसके हवाइयाँ उड़े चेहरे को देखते हुए कहा था। आप गए नहीं? उसकी रूह फना हुई थी उसे वापस देखकर। सोचा तुमने तो लिप पर कुछ लगाया नहीं, मैं ही मरहम लगा दूँ और निकाह की मुबारकबाद भी दे दूँ। उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब करते कहा और फिर उसकी नाक के साथ नाक जोड़ी उसकी सांसों को अपनी सांसों में खींचा जबकि उसकी कमर पर मौजूद हाथ होले उसके जख्मों को सहला रहा था। फॉर टेक ब्रेथ, उसको सांस रोके देख लबों के पास लब लाते कहा और गहरा सांस ली गई थी जिसे उसने बड़ी फुर्सत से खुद में अनहील किया था। यह ठीक नहीं है हाई, उसने कपकपाते होंठों से कहा था जबकि जिस्म कांप रहा था। उसने उसके कांपते टांगों को अपनी टांगों के हिसार में नॉर्मल करने की कोशिश की। क्या? एक दूसरे में सांस लेना कहते अब वो उसकी उसकी कान के लोब पर भीगा लम्स छोड़ते उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया था और वहाँ अपने शिद्दत भरे भीगे लम्स छोड़ने लगा था। वो हयात से गुलनार होती खुद में सिमटने लगी थी और वो अपनी बेबाक जसारतों से उसे सिमटने पर मजबूर कर रहा था। दोनों की बारी सांसें और दिल एक ताल पर रक्स कर रहे थे। हाई आप प्लीज़, उसने हल्कान होते हुए उसके लबों पर हाथ रखे थे उसे मना करने के लिए कि वो उसके हाथ पर लब रखते नरमी से उसका हाथ पीछे करते उसके कपकपाते लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले चुका था और अपने हाथों की उंगलियों में इसके हाथों की उंगलियां फंसाई गिरफ्त मजबूत करता चला गया था। अपनी सांसों में हरारत गुजरते पल के साथ उसकी सांसों को सींचने लगा था और वो हल्कान होती उसकी शिद्दत पर सांसों की टूटती डोर को कायम रखने की तगो-दो में लगी थी। एक अलाव था उसके जज्बात में जो वो उस पर नछावर कर रहा था अपने ज़हम पर उसके दांतों वो हल्कान होती उसकी शिद्दत पर सांसों की टूटती डोर को कायम रखने की तगो-दो में लगी थी। अपने ज़हम पर उसके दांतों की गिरफ्त मजबूत होते महसूस हुई तो दर्द की शिद्दत से आंसू निकल आए आंखों से और सिसकियाँ सांसों में दबी थी जिन्हें महसूस करता वो नरमी से उसके भीगे लबों को छोड़ता पीछे हुआ था और वो मुश्किल से मुँह खोले लंबे लंबे सांस लेने लगी थी रोते हुए। अभी इसे बस सो गई फ़हा व हसम वलीदान, अभी तो शुरुआत है। उस सर फिरे आशिक के हमार की कुर्बत की उसने कान में सरगोशी की थी उसके कमर से हिलाते और फिर दोबारा फ़हा दरवाज़ा खोलो। अरसम की आवाज़ पर दोनों चौंके थे। फ़हा वो मुसलसल दरवाज़ा बजाती आवाज़ें दे रहा था और वो हायसम की गिरफ्त से बड़ी मुश्किल से पीछे हुई गहरे सांस लेने लगी थी। होंठ लाल सुर्ख हुए थे गुलाब के पंखुड़ियों जैसे भीगे। वो गहरे सांस लेती उठने की कोशिश करने लगी थी कि उसने उसकी कोशिश को नाकाम बनाते उसकी गर्दन में मुँह छुपाया था और ब्यूटी बोन पर लब रखे थे। वह किसी सूरत उसे छोड़ नहीं रहा था। हाय प्लीज़ भाई आए हैं, वो उसने परेशानी से कहा था लबों पर जुबान फेरते, मगर वो सुनने को तैयार ही कब था। एक लम्हे के लिए भी गिरफ्त ढीली नहीं की थी। खबरदार जो तुम एक इंच भी हिली, यहाँ से कड़े तेवरों से कहा था। फ़ाहा तुम ठीक हो ना फ़ाहा, उसने फिर से पुकारा था। जी अरसम भाई मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? बिगड़े तनफ़ुस को बहाल करते उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते हुए कहा था। क्या कर रही हो, इतनी देर बाद आवाज़ दी है? अरसम ने अगला सवाल पूछा था। मैं बोलो प्यार 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 अपनी शोहर से। हायज़म ने उसके कान की लो को दांतों तले दबाते हुए कहा था। आप प्यार आई मीन सो रही हूँ भाई। उसने उसका गर्दन से नीचे रेंगता हाथ गुस्से से हया से लाल होते पीछे किया था। अच्छा दरवाज़ा तो खोलो, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें देखकर तसल्ली करके चला जाऊँगा। अरसम ने परेशानी से कहा था। जाओ फ़ा खोलो दरवाज़ा और अपने भाई को अच्छे से समझा दो उसे मामू बनने की जल्दी है या नहीं, मगर मुझे पापा बनने की बहुत जल्दी। उसके होंठों को नरमी से छुआ था उसने कहते। भाई मैं ठीक हूँ, सोने देना, उसने घबराते हुए कहा था। हाँ हाँ आई लाइक इट वेरी इम्प्रेसिव, उसने उसके गाल को दांतों तले दबाते कहा और वो सितम पर सितम कर रहा था और वह हल्कान हो रही थी उसकी बेबाक जसारतों पर। अरसम तुम यहाँ, हैरियत बाहर से आती है। हाँ आपने उसके कमरे के पास खड़े अरसम के पास रुकते पूछा। कुछ नहीं यार, फ़हा को लेकर एक अजीब ख्वाब दिखा था तो बस उसके लिए परेशान था इसलिए उसे देखने आया था। क्या यार अरसम तुम भी हद करते हो, लड़के का रूम थोड़ी है जिधर ऐसे ही मुंह उठाकर दरवाज़ा बजाने लगते हो। वो बड़ी हो गई है, सुबह देख लेना वो रेस्ट कर रही होगी। हाँ तसल्ली तो हो गई है मेरी, उसने बताया वो सो रही है। खैर मैं भी चलता हूँ, शब बखैर, उसने हाफ का कंधा तबतबाते कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ा। हाई प्लीज़ जाइए यहाँ से, उसकी बढ़ती बेबाक जसारतों पर वो अब सिसकने लगी थी। क्यों? उसने उसकी पानियों भरी आंखों में देखते हुए कहा था। आप सोच सकते हैं अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कब से अपनी मर्जियाँ चला रहे हैं, मुझसे एक बार भी पूछा मैं क्या चाहती हूँ?
तो अब तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। वो आईब्रो उचकाते सख्त लहजे में बोला। हाँ, पूछना पड़ेगा। क्या समझ क्या रखा है मुझे सब ने? उसने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया और आप अपना हक वसूलने आ गए। ये औकात है मेरी? मैं कहाँ हूँ? मेरी मर्जी कहाँ है? हाँ, मैं मानती हूँ मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, मगर उसे आप अपनी होश के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसने कराते हुए कहा और बेड से नीचे उतरी। क्या कहा तुमने? ये जो अभी अभी तुम्हें मान बख्शा है, मोहब्बत दी, अपने लम्स की हरारत दी, वो सब तुम्हें होश लगा? उसने उसकी बाजू को खींचकर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा। हाँ लगा होश, बिकॉज मेरी मर्जी शामिल नहीं थी इसमें, वो ना ही कभी होगी, और गंदे अमल आप मेरे साथ नहीं कर सकते। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। चुप, एकदम चुप, अब आवाज़ न आए तुम्हारी। तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? वो पंकारा। होश में हूँ, सब होश है मुझे, और होश में आने की आपको ज़रूरत है। आपको पता भी है इस निकाह ने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। नहीं, मैं हम में से किसी को मरता नहीं देख सकती, किसी सूरत नहीं। आपको अंदाज़ा नहीं है क्या कुछ होने वाला है। मुझे सोच कर ही डर लग रहा है, रूह कांप रही है मेरी। आप ऐसा करें, मोमिन को पता लगने से पहले ही मुझे तलाक। शट अप फाह, शट अप। इधर खड़ा कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसलिए कि शायद तुम डरी हुई हो अंदर से, या फिर तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। एक पल में तुमको मुझसे मोहब्बत हो जाती है और अगले में तुम अपनी फीलिंग्स जुटला देती हो और फिर डर को बीच में ले आती हो। मगर अब तुम्हारी बेवकूफ़ी हाथ से बढ़ गई है, और अब अगर तुमने हमारे रिश्ते को अलग करने के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात की तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं जान से मार दूंगा। उसने तने रघु से लब भींचते हुए कहा था, और फिर अपनी बात मुकम्मल होने के साथ उसके बालों में उंगलियां फंसाते उसके चेहरे को अपने करीब लाते और उसके रोते से सिकते वजूद की परवाह किए बगैर अपनी शिद्दत, अपना गुस्सा, जुनून उस नाजुक जान में अंडीलने लगा था। उसकी दबी दबी सिसकियाँ उसके मुंह में रह गई और सितम घर अब बिना हर सेकंड के साथ उसकी रूह फना कर रहा था, सांस लेने का भी उसे मौका दिए बगैर। अचानक उसके हाथों की मुट्ठियों ने उसकी जकड़ी शर्ट छोड़ी थी, और फिर वो उसके लहर से वजूद में आती मजीद कपकपाहट महसूस करता होश में आया था। उसके निचले लब से खून की बूंदों को लबू से चुनने चुटके से उसके गहरे तरफ से बेहाल वजूद को बेड पर फेंका था। कल का दिन है, तुम्हारे पासपोर्ट को मेंटली तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बात भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे या मेरे जुनून से कभी आज़ादी मिलेगी। ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना ही तुमसे मोहब्बत करना छोड़ सकता हूँ। और हाँ, एक और बात, परसों मुझे तुम्हारे लिप पर और कमर पर ये जख्मों के निशान ना मिले, चलता हूँ। शर्ट ठीक करो और सो जाओ। मज़ीद किसी बेवकूफ़ी की प्लानिंग की तो याद रखना, सबके सामने वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, और ये बात तुम जानती हो मैं अपने कॉल का कितना पक्का हूँ। उसने लर्ज़े से सिसकते वजूद को देखते ग्लव्स चबा कर कहते, और वो रुका नहीं था। अपना वॉलेट, मोबाइल, गाड़ी की कीज़ उठाता वहाँ से निकला। आई हेट यू, हाय मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूँ, कमीना, चमक, छल्लो, सुस्त, कछुआ, बंदर, जानवर, काट दिया मेरा लिप, अल्लाह पूछेगा तुम्हें, बदरूह कहीं का। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे किल जैसे सूखे सड़े पैदा हूँ। अपने लिप पर ज़बान पे सकते कहा, और वह दर्द बर्दाश्त करते हुए और फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। अपनी सांसों में उसकी सांसों को महसूस करते तकिए में सर दिए। भाभी भाभी, पिंकी ने कमरे में बैठे ही राग अलापना शुरू किया। वो किसी काम के सिलसिले में जा रही हैं, आप मुझे बता। चुप कर, तुझसे बात की मैंने, जितना हो सकता है कम मुंह खोला कर मेरे सामने। उसने मुद्दा की बात सिरे से ही काटते हुए कहा था। भाभी भाभी, उसने फिर से आवाज़ें देना शुरू कर दी, और अब मुद्दा भी चुपचाप बैठी इसलिए इसके लिए सेब काटने लगी थी। क्या बात है, बोलो, सारा ने अंदर आते हुए कहा। बात तो कुछ नहीं, वो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि 2 दिन में तुम्हारे पास अगर तुमने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने बंद न किए तो इस घर से तलाक का दाग अपने माथे पर सजवा कर निकलोगी। फिर ये मत कहना कि पिंकी ने बताया नहीं। उसने सारा की तरफ देखे बगैर तंबी लहजे में कहा था। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? सारा ने तामुल से बात सुनते हुए सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। नहीं, धमकी नहीं, उसे एडवांस समझ लो, सॉरी एडवाइस समझ लो। अगर अपना ऐश और आराम बचाना चाहती हो तो अपनी औकात से बाहर के काम करने से परहेज़ करो, वरना मैं धमकी नहीं देती, डायरेक्ट अमल करती हूँ, और ऐसा जाल में फंसाती हूँ कि हल्क से सांसें खींचकर अधमुँ कर देती हैं। नफरत से एक एक लफ्ज़ कचा कर कहा था उसने। तुमने एडवाइस दी, मैंने सुन ली, मगर क्या है ना, अब मैं ना तो किसी की एडवाइस मानती हूँ और ना ही किसी को सर पर चढ़ाती हूँ। एक एडवाइस तुमने दी, अब एक मैं तुम्हें देती हूँ। तुम ना एक इमोशनल सी अच्छी सी सेज तैयार कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा सच सामने आएगा ना तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। रही बात सांसें खींचने या मुझे मारने की, तो फिलहाल अभी तुम अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है। वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने किए में ही उलझ कर फंस कर नीचे गिरोगी, और दुनिया तुम पर, तुम्हारी मक्कारी पर, तुम्हारी चाल पर थू थू करेगी। उसने चबाते हुए हर लफ्ज़ कहा था और वहाँ से निकल गई थी। यू ब्लडी बास्टर्ड बिच, तेरी औकात क्या है मेरे सामने मुझे चैलेंज कर रही है? तू, तेरे इतने पर निकल आए, मत भूल सारा आज़म, तेरे पर कतरने का फ़न आता है मुझे। मक्कार औरत, मुझे
मेरे भाई के सामने जलील करेगी जिसकी खुद की इज्जत नहीं। उसने तनफर से कहा था उसके जाते। पिंकी, वो तुम्हारी भाभी हैं और भाभी माँ की जगह होती हैं। अगर तुम्हारी खुद की माँ होती तो क्या तुम तब भी उनसे ऐसे बात करती? मुंतहा को बुरा लगा था उसके इतने हार्श लफ्ज़ सुनकर, इसलिए बोले बिना नहीं रह सकी और यहीं अपने हक में गलती कर बैठी वो। हाँ हाँ, अब तुम जैसी नाली की गंदी कीड़ी पिंकी को समझाएगी जिसने बचपन से लेकर अब तक 2 कमरों के घर में ज़िंदगी गुजारी। मत भूल अपनी औकात मुंतहा। और रही बात ये कि वो मेरी भाभी है तो ना कल मैंने उसे अपनी भाभी समझा था ना समझूंगी। और हाँ, एक और बात, मेरी माँ और उस जैसी 100 बार ये गंदी पैदावार पैदा भी हो तो भी माँ मेरी माँ के लेवल तक नहीं पहुँच सकती। उसने नखुश से कहा। अच्छा, तो फिर आशिर भी तो उसी पैदावार का था, फिर तुम्हें कैसे? खबरदार, जो तुमने आशिर का नाम लिया मार दूंगी जान से। तुम्हें सब समझ आ रहा है मुझे, इसलिए तुम उसके पीछे दम हिलाती फिर रही हो कि तुम्हें उसका भाई मिल जाए और वो तुम्हें यहाँ से लेकर बाहर चला जाए और तुम्हें साहिबान मिल जाए, इसलिए तुम दोनों का इतना गुट जोड़ा है। मगर याद रखना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उसने मुंतहा की बात काटते किसी भपड़ी शेरनी की तरह उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा था कि उसका सांस हलक में रह गया था। यही नहीं, उसका गुस्सा इधर ही ख़त्म नहीं हुआ था। उसने उसके मुंह पर पे दर पे थप्पड़ों की बारिश की थी कि वो दर्द से आंखें मीच गई थी। अपना गुस्सा उतारकर उसका मुंह लाल करके पीछे हटी थी वो। चल निकल यहाँ से। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के पीछे धकेला था। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम इतने गुनाह कर चुकी हो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल पर सख्ती बना दिया और तुम्हारा दिल नरमी खो चुका है। और पता है पिंकी, दिल कब नरमी खोता है? तब जब हम अपने जहन के फतूर में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तब जब हम खुद को खुदा मानकर खुद की परस्तिश करने लगते हैं। तब जब सही गलत का फ़र्क किए बगैर गुनाहों की दलदल में धंसे जाते हैं। और तब जब हम उसके लिखे को जुटलाकर अपनी किस्मत खुद लिखने का फ़ैसला करते हैं। अभी भी वक्त है पिंकी, माफ़ी मांग लो सबसे, सबके सामने एक्सेप्ट कर लो अपनी गलती, रब से माफ़ी मांग लो। उसके जिन बंदों को अपने नफ्स की ख्वाहिश के ग़ुलाम बनकर रसवा कर चुकी हो उनको मना लो, क्योंकि रब अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है, अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने दिल में हड्डी मत बनने दो, अभी भी वक्त है। खुद की आहरत को संभाल लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो, झुक जाओ कि झुकी शाख पर ही तो फल लगता है। जहाँ तक रही बात मेरी कि मैं आशिर भाई की वजह से सरापी के साथ हूँ, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कोई भी घना शजर देकर सताई की लालच में जगह बनाकर बैठ जाती है। मैंने खुद को खुद का ही शजर बना रखा है, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में हर कोई दूर से नज़र आने वाला शजर सायादार नहीं होता। लिहाजा तवक्कात एक हद तक रखती हूँ मैं, बल्कि कभी कभी तो रखती ही नहीं, क्योंकि फिर उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाता है। उसने अपने आंसू साफ करते उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, जी मौलवियानी साहिबा, आपका दर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी इस पर अमल करने की। क्यों? तूने मेरे हाथों मरना है? जान प्यारी है तुझे? जान प्यारी नहीं तुझे, निकल इधर से। उसने शुरू में फंसते और फिर आखिर में गुस्सीले लहजे में कहा था। मुंतहा ने उसकी तरफ देखा था और फिर बाहर निकल गई। आज उसके कानों में इस कुरानी आयत की बात गुश्त हुई थी जिसे बचपन में वो कभी समझ नहीं पाई थी, और आज उसकी समझ में आ गया था और उसकी रूह कांप गई थी कि जिस आयत में ये वाज़ेह ज़िक्र था कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कानों पर और दिलों पर मोहर लगा दी गई है, यानी पिंकी के अमाल की वजह से उसके कानों और दिल पर मोहर लग चुकी है। उसने सोचते ही शिद्दत से आंखें बंद की थी। कितने आंसू टूट कर गिरे थे उसके रुखसारों पर और उसका चेहरा भिगो गया था। ये बात सच है कि कभी कभी हम इंसान ही अपने खुद के दुश्मन होते हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी बस अपनी तस्कीन के लिए अपने हक में बहुत कुछ बुरा कर जाते हैं और अपने रब को भी नाराज़ कर बैठते हैं। जब हम अपने साथ ही वफादार नहीं हैं तो हम किसी और के साथ कैसे वफादार हो सकते हैं? पिंकी ने भी तो यही सब किया था, अपने साथ भी बेवफाई कर गई थी और अपने जुड़े रिश्तों के साथ भी, और आज सब उसको बड़े दहरीले से कबूल करने से भी इनकारी था। मुंतहा ने शिद्दत से दुआ की थी कि रब से उसकी हदायत की। पापा, मोमिन का कुछ पता है? कहाँ है वो? बरबल रात के अंधेरे में छुपता छुपाता आया था और बाप के सामने बैठा पूछ रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कहाँ हो। 2 दिन बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा रहे हो। गया होगा वो भी कहीं अपने मकसद के हसूल के लिए। जैक ने काफ़ी का घूंट भरते हुए कहा था। कैसे बाप हैं आप? आपको हम नहीं बताते तो आपको खुद भी तो पूछना चाहिए। सारा वक्त ये मैजिक लेकर बैठे रहते हैं, क्या मिला इससे? आपको बच्चे पैदा किए तो वो भी नामर्द सुस्ती शहरत के लिए वक्त अलग बर्बाद करते हैं। उसका दिमाग घुमा हुआ था, तभी बाप से उलझ बैठा था। ये सुस्ती शहरत ने ही आज तुम लोगों को इस काबिल बनाया है कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ज़ुबान लड़ा रहे हो। मगर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बाप का नाम ये दुनिया जानेगी, मगर उस दिन मैं तुम दोनों को जानने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई जो तुम लोगों के पैदा होते ही तुम्हारे गले नहीं दबाए।
वो गुस्से से चिल्लाए थे उस पर। उसका यूं खुद से उलझना उन्हें ज़रा भी नहीं भाया था। तो आप दबा दें, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और नहीं कर सकते ये तो इतना बता दें कि मोमिन कहाँ है। उसने आपकी बार लहजा नरम रखा था। बल मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जाओ यहाँ से, मिले तो ढूंढ लो, नहीं मिले तो सुकून से बैठ जाओ। जैक ने बेजारियत से कहा था। पापा, आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, ज़िंदा भी होगा या नहीं? उसने अफसोस से कहा था। हाँ हाँ, इतना मुझे इल्म है कि वो मरा नहीं होगा, क्योंकि जो सीरियल किलर होकर कभी अपनी आसानी से किसी के भी जाल में नहीं फंसते। हाँ, इतना मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुछ और प्लान कर रहा होगा। इसलिए जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ और अपने बखेड़े खुद समेटो। एक बार फिर अपनी बात ख़त्म करते उसे जाने के लिए कहा था। वो कुछ देर बैठा उनकी शक्ल देखता रहा था और फिर अफसोस से सर हिलाता वहाँ से निकला था मोमिन को ढूंढने। वो 2 फ्लाइट्स बुक करवानी है, एक अमना ज़काल्ला की और एक जनीम ज़काल्ला की। उसने फ़ोन पर इतला दी थी। हाँ, वीज़ा पास भी देख लेना। वहाँ मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ सब कुछ हो, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, ऐसा ही है, बस मैं नहीं चाहता वो घर से बाहर निकले। कुछ सर्वेंट्स हायर करवा देना जो उन्हें हर चीज़ घर पर ही अवेलेबल कर दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक डॉक्टर भी चाहिए जो स्पेशली हमना के लिए हायर करवाओ। मुझे उसकी ड्रग्स छुड़वानी है। हम ठीक है, ये सब जल्दी होना चाहिए। ओके ठीक है, बाय, कहते उन्होंने कॉल रखी थी। मैं तुम दोनों को खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता, और मुझे फ़िलहाल तुम दोनों के लिए बेहतर यही लगा। किसी भी बहाने से मुझे तुम दोनों को कनाडा भिजवाना है, और तब तक मैं तुम लोगों को वहाँ ही रखूँगा जब तक ये पज़ल बॉक्स से मिस्ट्री हल नहीं हो जाती। जिस दिन ये मिस्ट्री हल होगी उस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने होगा इंशाल्लाह। सगी ने गहरा सांस लेते हुए कहा था, और फिर कदम कदम चलता अपनी कबर्ड की तरफ गया और वहाँ से एक ग्रे कलर की फ़ाइल निकाली और फिर उस फाइल को खोल दी। उसके सामने वो मंजर दौड़ाया था जिसने उसने सुल्तान चौधरी वलीद खान पर पहली बार वार किया था। बस ये फार्मूला पूरा हो गया या कुछ रहता है? सुल्तान ने वलीद की तरफ देखते अपने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तुम्हें क्या लगता है? वलीद ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगता है वो दिन जल्द आने वाला है जब दुनिया हम दोनों को इस मुल्क के सबसे अहम हिस्से के तौर पर जानेगी। तुम देखना वलीद, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर हर जगह हमारे मुल्क की धूम होगी, इस मिट्टी का कर्ज उतार देंगे हम। सुल्तान ने एक नाज की कैफियत में कहा। तुम दोनों को नहीं, ये दुनिया सिर्फ ज़का को जानेगी और पहचानेगी, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं ये फार्मूला बेच कर करोड़ों डॉलर कमा सकता हूँ। ज़की ने उनकी सारी बातें चुप कर सुन ली और अब उन पर गन ताने खड़ा था। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है ज़की ये इतना आसान है? तुम डरा धमका कर हमसे ये फार्मूला लोगे? सुल्तान ने बगैर डरे हंसते हुए कहा। इससे पहले कि वलीद वो फाइल छुपाता, ज़की ने उसे पीछे से झपटे वो फाइल उसे छीनी थी और उन दोनों को धक्का देकर नीचे गिराया था। वहाँ से उस फाइल के साथ निकला था, मगर घर जाकर उसे पता चला था कि इस फार्मूला के 2 अहम ऑब्जेक्टिव्स तो उसमें मेंशन ही नहीं है। उसके बाद उनको मारने तक को उनके बारे में इल्म नहीं हो सका था। एक दिन वो पज़ल बॉक्स खुलेगा और उन 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं हर सूरत जान लूँगा, और बस इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार है। अरसम सुल्तान चौधरी, इस पज़ल बॉक्स की मिस्ट्री सॉल्व होती ही तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ना पहुँच जाया तो मेरा नाम भी ज़काउल्लाह नहीं। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। दोहरे हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, जिनको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं, कभी भी नहीं। उसने सोचते हुए वो फाइल दोबारा वापस उस जगह पर रखी थी। आज मेहंदी का फंक्शन था, सब तैयार हो रहे थे। इशाल फ़हा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी, जबकि उससे कुछ देर पहले ही एक ब्यूटिशियन बड़ी महारत से उनके हाथों पर मेहंदी सजा कर गई थी। असम और एहाब भी तैयार होकर निकले थे अपने कमरे से। एहाब, असद को कॉल की थी तुमने? एहाब के पास खड़े होते हुए उसने पूछा था। नहीं, मुझे याद नहीं रहा, एहाब ने गड़बड़ाते हुए कहा था। व्हाट, याद नहीं रहा? उसको कॉल करके पूछो कब की फ़्लाइट है उसकी, ताकि हमें भी परेशानी ना हो बाद में। उसने बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्हें सेट करते हुए कहा था। अच्छा, मैं देख लूँगा। ये पुप्पो रेडी नहीं हुई, मैं उन्हें देखता हूँ, कहता वो एहाब के पास से मिसेस रंधावा के कमरे की तरफ चल दिया था। ये डोना पता नहीं क्या चाहता है, मामा को भी मना कर दिया बताने से, और अब मुझे भी कैसे संभालूंगा इस सब को। उसे अगर लास्ट मिनट पर बताया फ़हा के निकाह का तो वो किसी बम की तरह फटेगा। उसने सोचा था। चलो भाई, देर हो रही है। हाल में वो लोग आ गए हैं, अरहम की मदर की कॉल्स आ रही हैं। सवेरा रंधावा इशार फ़हा और अरसम के साथ चलती आप तक आते हुए कह रही थी। फ़हा, आज मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हासम को ना दिखूं? अरसम ने फ़हा की तरफ देखते हुए कहा था। मगर क्यों? उसके पीछे से आवाज़ आई थी। सबने मुड़कर देखा था। अरसम के बिल्कुल पीछे खड़े डोना ने सवाल किया था। इसलिए कि हासम और फ़हा कबल नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा था। मगर ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? डोना ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। मैं उसका भाई हूँ और मुझे फैसला करने का पूरा इख्तियार है। साइड पर हटो, वक्त ज़ाया मत करो। जब कह दिया कि ये कपल नहीं है तो नहीं है।
مگر یہ کاغذات تو کچھ اور کہتے ہیں، لیں یہ پڑھ لیں، دیکھ لیں آپ بھی۔ اس نے حازم اور فہا کا نکاح نامہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے ناسمجھی سے اس نے دیکھتے پکڑ لیا تھا۔ فہا احاب اور مسز رندھاوا کے رنگ فک ہوئے تھے۔ کس نے کروایا یہ سب؟ وہ حل کے بل اتنی زور سے چیخا تھا کہ وہاں کھڑی سب کی روح فنا ہوئی تھی، سوائے ڈونا کے۔ وہ آپ تسلی سے کھڑا تھا۔ میں نے، ڈونا کا ایک لفظی جواب آیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت؟ وہ نکاح کے پیپر کو پھاڑتے غرایا اس پر۔ ہاں میری اتنی جرأت کیونکہ جب آپ کو نہیں دکھا وہ جو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کیا وہ سب۔ وہ اب بھی اطمینان زدہ لہجے میں بولا تھا، یو باسٹرڈ، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے فیصلے کرنے والے؟ وہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک مکہ جڑا تھا اس کے منہ پر۔ وہ منہ کے بل گرا تھا جب اس کے ہونٹ کا کونا بری طرح پھٹا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا۔ ایشال اور فہا نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا دہل کر۔ مسز رندھاوا شوک نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ جتنا مرضی مار لیں ارسم بھائی، مگر اب آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ وہ واحد حقیقت ہے جس میں آپ یا کوئی اور بدل نہیں سکتا، کیونکہ وہ غرض آپ ہیں، میں نہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ کا کونا آستین سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا، تم ہوتے کون ہو مجھے خود غرض کہنے والے؟ ہماری آستین کے صاف نکلے دشمنوں کے ساتھ مل کر دشمنی کھیلی تم نے۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس نکاح کو میں کیا یہاں کھڑا کوئی شخص نہیں مانے گا۔ اس کے منہ پر پہ در پہ مکتے مارتے اس نے اس کے پیٹ پر لاتیں ماری کہ وہ کرا کر آدموں ہوا، مگر ہمت نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ کیا کر رہے ہو ارسم؟ مر جائے گا وہ، چھوڑو اسے۔ احاب نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سخت جان غصے اور اشتعال میں پپرا کسی شیر کی طرح وار کر رہا تھا اس نہتے کمزور پر۔ ہٹ جاؤ احاب، اس کو عزت راس نہیں آئی، کتنا پیار دیا ہم سب نے اسے، اور اس نے کیا کیا؟ ہماری عزت کا سودا کیا اس کے سامنے۔ جس گھر سے بیٹی میں لے سکتا ہوں دے نہیں سکتا، جانتے ہو وہ صرف بدلہ ہے میرا، صرف اور صرف بدلہ۔ وہ موت مارنا چاہتا ہوں اس گھر کے لوگوں کے، ان کے نام و نشان سفاقستی سے مٹ جائیں، اور اس نے اسی گھر میں میری بہن کو دے دیا۔ وہ ہوش کھو بیٹھا تھا، سامنے صرف ڈونا تھا، اس کے تیش میں نکلے لفظ، اور اسی تیش میں وہ اسے مار مار کر بحال کر رہا تھا کہ اس کا منہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی لاش اس خاصم کے آگے ڈال کر آؤں گا جس کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے اس کے پور پور چوٹ زدہ وجود کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور سامنے رکھے شیشے کا والز توڑ کر اس کا کانچ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ارسم ڈونٹ ڈو، وہ مر جائے گا۔ احاب کی آنکھیں ابلی تھی باہر یہ سب دیکھ کر، کب سے وہ اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یہ ختم۔ اس نے کانچ کو ہوا میں لہرایا، جب ہی بجلی کی تیزی سے فہا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ نے اسے کچھ بھی کہا تو اسی کانچ سے میں خود کو مار دوں گی، فہا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹو سامنے سے فہا، اس نے اس کی بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کہا نا اب اگر اس کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی آپ نے تو اگلے نقصان کی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو میں اب سمجھا، اس نے تمہیں ٹریپ کیا نا یہ سب کرنے کے لیے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری تھی فہا کو لے کر۔ نہیں کیا اس نے ٹریپ، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں نے خود یہ نکاح کیا ہے۔ میں حازم سے محبت کر تھا، اگلا لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا جب اس کو تھپڑ جڑا تھا ارسم نے، اور آج پہلی بار اس نے خود اپنی بہن کو تکلیف دی تھی۔ شٹ اپ، ایک اور لفظ بھی منہ سے نکلنا نہ تمہارے تو یہیں پر تمہاری قبر کھود دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، جتنا میں پیار میں جان قربان کرنے والا شخص ہوں، عزت کی بات پر زندہ دفن کر دینے والوں میں سے بھی ہوں۔ اس کے لفظوں پر تنبیہ تھی، غصہ تھا، اشتعال تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارسم، مسز رندھاوا دھاڑی تھی فہا کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، بکواس سنی آپ نے اس کی، اور یہ اور ڈونا، ان دونوں نے مل کر بے وقوف بنایا ہے ہمیں، اور آپ اب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاگل ہوں اور یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے پھر سے ڈونا کا گریبان پکڑا، جب بھی فہا پھر سے اس کے سامنے آئی۔ ارسم یہ بات بیٹھ کر آرام سے بھی، بس احاب آرام سے بات نہیں ہوگی، اب کال کرو اور حازم کو اور بولو طلاق دے اس کو ابھی اور اسی وقت۔ اس نے انگلی اٹھاتے غصے سے لال ہوتے چہرے سے کہا تھا، واو کلیپنگ، میرا دل کر رہا ہے تالیاں بجاؤں، کیسے پل بھر میں نظریات بدل رہے ہیں نا میرے بھائی کے۔ ایشال نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں یاد ہے ماما، کچھ دن پہلے میرے پیارے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ طلاق کا داغ اپنے خاندان پہ نہیں لگنے دے گا وہ، اور یہ کہ مجھے ہر حال میں رشتہ نبھانا ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے خاندانوں میں طلاقیں ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ پھر اب کیا ہوا؟ اصول بدل گئے کیا؟ یا پھر اپنے دماغی فطور کے آگے یا بادشاہت کے آگے جو چاہو گے جیسے چاہو گے کر لو گے؟ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنے دنوں کی چپ بھی تو توڑی اس نے، اقرار محبت تو کیا، جو اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی اپنے حق میں تو بولی، اور اب اگر بول لیا تو اس نے تو وہ
जुर्म करार पाई। हाँ हाँ, कितने भोंडे असूल हैं तुम्हारे असम सुल्तान चौधरी, मगर एक बात याद रखना, अगर फ़हा को तलाक हुई ना तो मैं तुम्हारी शादी जोइशा से होने दूंगी, और ना ही मैं अरहम के साथ रुखसत होंगी। बगैर डरे उसकी आंखों में आंखें डाले तंबी की थी, तुम अपने रिश्ते को और अपने मामलात को इस सब में मत घसीटो, दूर रहो इस सब से। वो चिल्लाया था उस पर। बात तो हो गया, मामलात भी घसीटे जाएंगे, क्योंकि अपनी बहन के साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम बस करो इशू, और तुम अरसम, जो हो गया सो हो गया, नसीब के लिखे को टाल नहीं सकते हम। शायद खुदा को यही मंजूर था। उन्होंने इशाल की बात काटते उसे समझाने की कोशिश की थी। ये मंजूरी आप कबूल कर सकती हैं, मैं नहीं। इसको तलाक होगी और हर हाल में होगी। चलो मेरे साथ। उसने फ़हा का हाथ थामा था। हाँ जाओ इस बेहिस शख्स के साथ। फ़हा जिसकी खातिर तुम कुर्बानी देने पर तुली थी, जाओ और डोना चुप। फ़हा ने उसकी बात काटते उसे चुप रहने की सर्जिश की थी। नहीं क्यों चुप, आखिर उसे भी तो पता चले कि तुम अपनी ज़िंदगी उसकी वजह से दाव पर लगानी चली थी। सुनिए प्यारे अरसम भाई, आपको आपकी मोहब्बत देने के लिए, आपको आपकी मोहब्बत से मिलवाने के लिए आपकी बहन ने अपनी मोहब्बत छोड़कर मोमिन से डील की थी कि अगर वो जोइशा को छोड़ देगा तो ये उससे शादी कर लेगी, क्योंकि मोमिन जोइशा को पसंद करता था, और उसने ऐसा ही किया। अपने दिल के 100 टुकड़े करके आपको खुशी देने चली थी, मगर बदले में आपने क्या किया, पता नहीं कौन से बदले को दिल में लिए। अपनी बहन की कुर्बानी को पैरों तले रौंद कर आप इसकी मोहब्बत से उसे दूर कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ अरसम भाई, प्लीज़ इस निकाह को कबूल कर लें। मैं ये खुशी इसको नहीं दे सकता। रही बात जोइशा की, तो उसको हासिल करने के लिए मुझे किसी की कुर्बानी नहीं चाहिए। आप तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से निकलो, वरना ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं इस निकाह को मर कर भी कबूल नहीं करूँगा जिसमें उसका कोई वारिस ही शामिल ना हो। ये निकाह नहीं, बगावत थी जिस पर तुमने उसे उकसाया। तुम चाहकर भी नहीं जुटा सकते इस निकाह को अरसम, क्योंकि मैं इस निकाह में शामिल थी, और फ़हा के वारसों में से एक वारिस मैं भी हूँ। उन्होंने कहा था। अब जबकि वो जान गई थी अपनी माशूक के दिल की बात, तो वो कहाँ चुप रह सकती थी, इसलिए बोल पड़ी। क्या कहा आपने पप्पो? और तो फिर ये तो सोची समझी प्लानिंग थी ना, और मैं पापा जिसकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और जिसे भांग भनक भी नहीं लगी। उसने बेकिनी से मिसेस रंधावा की तरफ देखते हुए कहा था। देखो अरसम, ये सब हमने फ़हा की खुशी के लिए। तुम बताओ आप, और सच बोलना, बिल्कुल सच। क्या तुम भी इस सब में शामिल थे? उसने ज़हर हंदा नज़र उस पर जमाते हुए कहा। अरसम प्लीज़ यार, तुम क्यों इस सब को? अना का मसला, हाँ या ना? उसने फिर से उसकी बात काटी। अरसम मैं वो, हाँ या ना? उसके बाद आपकी बार उसने गरजदार आवाज़ में कहा। हाँ। उसने गहरा सांस लिया और कहा, जानता था कि झूठ नहीं बोल सकेगा और सच के बाद उसकी नफरत सहन नहीं कर पाएगा। सही मैं तो ऐसे ही उस बेचारे को मारने पर तुला था, जबकि मेरे घर में ही मेरी जड़ें काटने के लिए तुले हुए खड़े हैं। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं और शमसुद्दीन चौधरी कल भी अकेला था और आज भी अकेला हूँ। उसकी आंखों में नमी उभरी थी जो इधर खड़े हर शख्स को तड़पा गई थी। सब बेटा मेरी बात नहीं हूँ मैं आपका बेटा, कुछ नहीं लगता मैं आप सबका, मैं तो हूँ ही नहीं आप सब में से। ना मेरी कोई इज्जत ना वैल्यू, दूर किसी से क्या गिला। जिस बहन को लाड से पाला उसने ही मुंह पर जूता दे मारा, अपने ही भाई के सामने, मेरे ही दुश्मन के लिए, और अपने उस दोस्त के लिए डट कर खड़ी हो गई। लानत देता हूँ मैं ऐसे रिश्तों पर और ऐसे घर पर जहाँ सब ने मिलकर मुझे डसा, मेरी इज्जत को रोंदा। उसने एक एक लफ्ज़ तैश में आकर कहा। अरसम तुम ये नहीं कह सकते, देखो तुम हमें मसला भी तो बताओ, क्या मसला है तुम्हें हासिम से? एक तरफ तुम कहते हो वो तुम्हारा दुश्मन है, चलो मान लिया कि किसी लिहाज से वो तुम्हारा दुश्मन हुआ, कभी उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसका खानदान मुझे नुकसान पहुंचा चुका है, और वो नुकसान मेरी ज़िंदगी रोंद गया है, मुझे अकेला करके मेरा सारा बचपन नोच गया है। उसने उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा। अच्छा हो गया ना जो होना था, तो क्या तुम ये सब भूलकर फ़हा की खुशी के लिए उसे माफ़? मैं अपनी ज़िंदगी के हसारे पर उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसको निकाह मुबारक, और इन दोनों बहन भाइयों को असम सुल्तान चौधरी की दुश्मनी आल ऐलान मुबारक, और आप सबको ये सल्तनत मुबारक। आज के बाद मेरा आपसे या इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। मर गया मैं आप सब के लिए। अपने हिस्से की लड़ाई अब मैं खुद लड़ूंगा, और डोना तुम कोशिश करना आप मेरे रास्ते का रुकावट ना बनो, वरना इस तोड़ फोड़ के बाद तुम एक झटके की मार हो, और तुम वहाँ बचा सकती हो तो बचा लेना अपनी मोहब्बत को। अरसम खुदा का वास्ते है मत जाओ, अपने पप्पा पर एक बार एतबार तो करके देखो। मुझे बताओ क्या दुश्मनी है? मैं वादा करती हूँ कि हासिम खुद माफ़ी मांगेगा तुमसे आकर। माफ़ी नहीं चाहिए, उन दोनों बहन भाइयों की मौत चाहिए, तब सुकून मिलेगा मुझे। अरसम प्लीज़ छोड़ दो ये ज़िद, वो वहाँ बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम मोहब्बत करते। हाँ हाँ, किसने कह दिया आपको कि अरसम सुल्तान चौधरी उस साइको